Hi everyone, welcome and welcome back to my channel Mystic Penny. And yes, everyone, happy Sawan, Har Har Mahadev. Okay, कई लोगों का आज फास्ट होगा and yes, जिसको भी आप शिव जी की गाइडेंस चाहिए, please make sure to share this live. Okay, comment and yes, follow me on Instagram account so that आप शिव जी का स्पेशल मैसेज ले सकें. Hi Mon, in your guardian decision ka dimpi with no ka decision. Hi Mon, Har Har Mahadev, happy Savan. And yes Mon, please make sure to follow me on Instagram account and share this live session and comment. Only then I will take your question. It's important for me to Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya Mon. And yes, पहले लोगों को आ जाने देते हैं. Then only I'll start the reading. Khushi Pandey. Khushi Pandey, happy Savan. Please follow me on Instagram account and also share this live session and comment. If you have already followed me on Instagram account, make sure to write followed Instagram account. I'll be checking your what. Okay, ma'am. Sure. Thank you, Khushi Pandey, and happy Savan, Khushi Pandey. Har Har Mahadev. And yes, everyone, thank you for supporting, thank you for liking, and thank you for subscribing my channel. Har Har Mahadev Puja. Har Har Mahadev. Please follow me on Instagram account. Also share this live session and comment. I'll be checking your comments. Also, if you are interested to take paid readings, you can DM me or comment paid, so that Likita John. Hi, Likita John. How are you? I'm good. Har Har Mahadev. Happy Savan, Likita John. And please make sure to follow me on Instagram account and also share this live session. Komal Pagna Gujar. Radhe Radhe. Good morning. Har Har Mahadev. Komal Pagna Gujar. Please make sure to share this live session and also comment. Okay. ओके सो एज़ यू ऑल नो कि मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैं काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग करती आ रही हूँ, बट जो कि मेरे यूट्यूब में मैं एक तरीके से नया प्लेटफॉर्म है. सो येस, आई नीड टू ग्रो इट एंड यू guys are here to support me. Hi Ankita, thank you so much for coming to my live session, and also please subscribe and please follow me on Instagram account and also like this session. And yes, share this live session and also comment please. Thank you Khushi Pandey, thank you so much. Khushi Pandey, if you have done I hope you remember me. I know Ankita and I remember you. I know you are my new subscriber and I have already said the new subscribers को मैं जल्दी ले लूँगी, because I know मैं काफ़ी टाइम से old subscribers के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, जिसकी वजह से new subscribers के मैं बिल्कुल ही नहीं ले पा रही हूँ. And I know each one of you जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, also please follow me on Instagram account. And also I request, प्लीज़ अगर आपको पेड सेशंस में आना है, पेड रीडिंग लेनी है, बिकॉज अब मैं लाइव सेशन में थोड़ा कम आऊँगी, जैसे कि मैं कल रात भी नहीं आई थी, बिकॉज पेड रीडिंग्स ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बैक टू बैक आ रही हैं और मैं पेड रीडिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होती चली जा रही हूँ. एंड येस, इससे पहले मैं एक ऐप में भी काम करती थी एंड वो भी मैंने छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर एंड आई वांट टू ग्रो माय टैरो का जो स्पेस है, मैं और जगह और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. सो दैट मैं इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है. एंड ऑल्सो ये मेरा बहुत ही इंट्यूटिव डिसीजन था कि मैं ये यहाँ पे लाइव सेशन में फ्री रीडिंग्स दूँ. और थैंक यू अंकिता, थैंक यू. फ्री रीडिंग्स दूँ एंड एज यू ऑल नो माई फ्री रीडिंग्स आर वर्थ इनफ. आपका टाइम के अकॉर्डिंग ये वर्दी इनफ है. ओके. एंड ऑल्सो अगर आप में से किसी कोई भी पेड रीडिंग्स लेना चाह रहा है, प्लीज़ मेक श्योर टू मेंशन योर स्टोरी एंड डिटेल्स जो वहाँ पे देनी होती है, अपना नाम, जिस पार्टनर के लिए आप पूछना चाह रहे हो उनका नाम,
एंड योर स्टोरी, एंड क्योंकि स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बुक हो रहे हैं, अगर आप प्रायर में वहाँ पे स्टोरी दे देते हो तो उसी अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ बिकॉज काफ़ी लोग आप में से वहाँ पे पेड रीडिंग के लिए पूछ रहे हैं, और मैं ये इंस्ट्रक्शन इसलिए भी दे रही हूँ बिकॉज आज सुबह ही पेड रीडिंग के लिए जो आया है वो बार बार बोलने लगे कि यस कब आप टाइम कब देंगे। वहाँ पे मेंशन है गाइस, वहाँ पे टाइम मेरा मेंशन है 24 आवर्स टू 28 आवर्स के अंदर डिलीवरी होगी। एंड यस, जो अर्जेंट मैसेज है ये उसके लिए है, एंड जो भी नॉर्मल डिलीवरी टाइम है वो 72 टू 48 टू 72 आवर्स का बीच में है। सो यस, okay, now moving to Khushi Pandey. Khushi Pandey, what's your question? Tell me. Everyone, please make sure to follow me on Instagram account. जो भी मेरे Instagram account में या यहाँ पे live session share कर रहा है and comment कर रहा है, comment done, share like share done, and Instagram follow done. Then only I'll be taking your questions. खुशी पांडे, आपका क्वेश्चन है। Thank you, कोमल फागड़ा गुजर। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज दैट मैं बिजी हो रही हूँ। मैं पहले भी बिजी थी बट यूट्यूब का जो ये चीज़ है ना, ये अलग लेवल पे है। पहले मैं वर्बली पेड रीडिंग्स, ऑफलाइन पेड रीडिंग्स देती थी, लेकिन वो मेरे को बहुत ऑन एंड ऑफ रहता था, एक रूटीन बेस नहीं था। और जिस ऐप में मैं काम कर रही थी, बिकॉज मैं वो ऐप का नाम इस समय यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ बिकॉज फॉर कॉन्ट्रैक्ट रीजन और जो भी वो रीजंस होते हैं उनके गाइडलाइंस वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी मुझे नहीं मज़ा आ रहा था करने में। तो फाइनली जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे यूट्यूब करना ही करना है, फुल फ्लेज में यूट्यूब ही स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ी नर्वस थी बट ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड यू सपोर्टेड मी। सो मैं थोड़ा सा अब यूट्यूब में भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। अदरवाइज पेड रीडिंग्स वाकई में मुझे बिजी कर रही हैं, अब बहुत ज़्यादा बिजी कर रही हैं। एंड येस, नाउ मूविंग टू okay, Khushi Pandey like to, and make sure to double tap, please double tap. Okay, all you can do is आप मुझे, of course I'm not charging, तो आप उसके बदले सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यहाँ पे लाइव सेशन को शेयर करें एंड कमेंट करें, बिकॉज लाइव सेशन गिनती के शेयर नहीं होते हैं बिल्कुल भी। कमेंट 10-15 आते हैं जो कि मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है वही करते हैं, वो भी जो जो यहाँ पे आए भी नहीं है वो लोग करते हैं, जो यहाँ पे आए भी नहीं होते हैं वो लोग मेरे को कमेंट कर रहे होते हैं। आप लोगों में से मैं किसी का कमेंट वहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ। दिस टाइम आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स टू बी सीन ओवर देयर, प्लीज़ मैं सबके कॉमेंट चेक करूँगी। एंड येस, प्लीज़ comment, please share this live session, and also please follow me on Instagram account. It's a high request, and because आपकी रीडिंग यहाँ पे हो रही है एंड यू नो हाउ योर रीडिंग इज़ डन बाय मी, आपको पता है मैं रीडिंग कितने अच्छे से देती हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू हैव सम ग्रैटिट्यूड, शो सम ग्रैटिट्यूड ओवर हियर। एंड यस, नाउ मूविंग टू खुशी पांडे। संकल्प का वेट करूँ या मूव ऑन कर चुका संकल्प का वेट करूँ या वो मूव ऑन कर चुका 4 मंथ नो कनेक्ट वेटिंग कम बैक। ओके खुशी पांडे का क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक श्योर टू डबल टैप द लाइव सेशन। फोर मंथ हो गए हैं आपको, नो कॉन्टैक्ट है। ओके, please everyone, please make sure to like this session, and please like this session, and also okay Bake 215, I will do your reading in English, and make sure to follow me Bake 215 on Instagram account, and my Instagram account is mentioned, मैंने जो मैंने टाइटल प्रोवाइड किया उसमें मेंशन है मिस्टिक बिनी, सेम नेम जो कि YouTube का है। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस लाइव सेशन एंड ऑल्सो कॉमेंट, प्लीज़ if you will share this live session and if you will comment, I will take your question ASAP. Okay, and I don't want to repeat it again and again because मेरा flow reading की तरफ टूट जा रहा है। so आप लोग अपने आप ही प्लीज़ जल्दी जल्दी
Okay, now. Likita John, I'm pretty sure you have asked this question. John Paul, current feeling for Likita John. I don't know why are you asking it again. Thank you, Ekta Sharma. I love you. Ekta Sharma, I love you. And yes, Ekta Sharma, you are my legit subscriber, जो कि मुझे ऐसे ही support कर रहा है without any demand. And thank you so much, Ekta Sharma. Please tell them follow me on Instagram account and also like this session and share this session and also comment on this session so that I can take their question जल्दी से. खुशी पांडे का क्वेश्चन है, संकल्प का वेट करूं या वो मूव ऑन कर चुका है? नो कॉन्टैक्ट, विल ही कम बैक, विल ही कम बैक? खुशी पांडे का क्वेश्चन है, संकल्प का वेट करो, संकल्प का वेट करूं या वो मूव ऑन कर चुका है? 4 months नो कॉन्टैक्ट, विल ही कम बैक? खुशी पांडे का क्वेश्चन है, संकल्प का वेट करो या मूव ऑन कर चुके हैं? 4 months कॉन्टैक्ट, विल ही कम बैक? संकल्प का वेट करो या मूव ऑन कर चुके हैं? 4 months no contact, will he come back? ओके, दसन का कार्ड आपके लिए आ रहा है. खुशी पांडे, यस खुशी पांडे, गाइस फॉलो ऑन इंस्टाग्राम मिस्टर बिनी. थैंक यू. एकता शर्मा आप कैसे हो? ठीक हो आप? अभी ठीक हो आप? मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, आपने आप प्लीज़ उस मैसेज को पढ़ो और मुझे प्लीज़ शेयर करो. ओके, जो भी आपको लग रहा है प्लीज़ आप शेयर करो. आई रिजेक्टेड जॉन पॉल प्रपोजल, सो आई वांट टू नो व्हाट हिज करंट फीलिंग्स आर. लितिका जॉन, why didn't you mention it earlier? Okay, because your question was what is his current feeling, and अगर मैं current feeling के ही क्वेश्चन उठा देती जॉन पॉल की, तो वो current feeling फिर से आपको कुछ कंफ्यूज कर देता. इसीलिए प्लीज़ गाइस, दीपिका जॉन जैसे मिस्टेक कर रही हैं, और प्लीज़ ऐसे मिस्टेक आप ना करें. आप अपना क्वेश्चन प्लीज़ क्लियरली मेंशन करें कि बैक स्टोरी क्या है. आई नो बैक स्टोरी में आप बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, बट एटलीस्ट शॉर्ट में आप अपना थोड़ा सा इंसाइट बता सको, जिससे कि रीडिंग्स क्लियरली आ पाए. जैसे कि लिखिता जॉन का कहना है कि आई रिजेक्टेड जॉल पॉन्स प्रपोजल, सो आई वांटेड टू नो हिज व्हाट हिज करंट फीलिंग्स आर. बिकॉज अगर सिर्फ करंट फीलिंग उठा देती मैं रीडिंग में, तो आप ही को कंफ्यूजन हो जाती है. ओके लितिका जॉन, एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एडिटिंग योर क्वेश्चन. एंड नाउ मूविंग टू खुशी पांडे. खुशी पांडे, प्लीज मेक श्योर टू से येस. एंड आपकी रीडिंग में ऑलरेडी स्टार्ट करने वाली हूँ. 10 सन का कार्ड आपके लिए आ रहा है. लिखिता जॉन, थैंक यू सो मच. एंड यस लिखिता जॉन, प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी इंस्टाग्राम अकाउंट. पापा सारे ड्रिल पूरे कर लेना. ओके खुशी पांडे, सन का कार्ड आ रहा है आपके. इसका मतलब यही है कि अभी संकल्प के दिल में क्लैरिटी और वार्मथ बाकी है. ओके, एंड ये कार्ड नेगेटिव तो फॉर श्योर नहीं है, बल्कि ये यही बता रहा है कि उनके मन में पॉजिटिव एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन का फीलिंग है, या एहसास अभी भी है. चाहे 4 मंथ से नो कांटेक्ट हो, बट उनका कमबैक हो सकता है एक लाइट हार्टेड या होपफुल इंटेंशन के साथ. शायद अभी वक्त लग रहा हो क्लैरिटी लाने में, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ है. ओके खुशी पांडे, वेट करना मतलब एक तरीके से बेकार नहीं जाने वाला है इस कार्ड के अकॉर्डिंग. ओके, लेकिन अपने लाइफ को होल्ड पर भी मत रखो. ओके, यस आई विल. एकता शर्मा, आई विल. इसलिए तो बोला वहाँ पे, जो मैंने मैसेज किया आपने उसका रिप्लाई नहीं किया. मुझे जानना था, आपने रिप्लाई नहीं किया. मैं चिंता कर रही थी आपके बारे में. ओके, लेकिन अपनी लाइफ को होल्ड पर भी मत रखो. ओके खुशी पांडे, अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस पे प्लीज फोकस रखो, क्योंकि खुशी पांडे रीडिंग में अगर आपको आना होगा टाइमिंग तो आ जाएगा, बट फिलहाल रीडिंग में आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है. रीडिंग के लिए टाइमिंग के लिए मुझे 2 दिन कार्ड एक्स्ट्रा उठाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मुझसे पेड सेशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में टाइमिंग आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चंस में टाइमिंग नहीं आती है. एंड फॉर यू टाइमिंग अभी नहीं आ रही है, बट आपके लिए इतना होपफुल कार्ड आ रहा है कि वो
नेगेटिव कुछ नहीं है खुशी पांडे। मेक श्योर टू लिसन योर मैसेज, जो भी आपको मैसेज डिलीवर हो रहा है बस उसको सुनो, ठीक है। और क्योंकि ये एनर्जी उनको भी अट्रैक्ट करेगी वापस आने के लिए। सी खुशी पांडे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि टाइमिंग क्या है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये सुनो कि क्या करना चाहिए आपको। अब मैंने जब बोला आपको वेट करना, आपका बेकार नहीं जाने वाला। अब वेट मे बी कितने टाइम का होगा वो मे बी आगे आ जाए, मैं अगर थोड़ा और रीड आउट करूँ तो शायद मैं बता पाऊँ, बट फिलहाल मेरे को कोई टाइमिंग नहीं नज़र आ रही है आपके केस में। आपके केस में ज़्यादा मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है। गाइडेंस से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आप अपने को होल्ड मत करो या अपनी लाइफ को उनके लिए रोको मत। इस समय पे अगर आप रोक रहे हो तो गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो उनको और ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रहा है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ना चाहते हुए भी, मतलब नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस पे फोकस रखोगे ना, इससे क्या हो रहा है खुशी पांडे, ऑटोमेटिकली ये यही एनर्जी उनको भी अट्रैक्ट करेगी वापस आने के लिए। सो खुशी पांडे, इट्स ऑल ऑन यू। सब कुछ आपके ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर नहीं है। आप चाहो अगर आज आप अपने उनसे अपनी एनर्जी हटा दो और अपने ऊपर फोकस करो और आप अपने ऊपर वर्क करो, ग्रोथ और हैप्पीनेस के ऊपर। खुश रहना सीखो, ग्रो करना सीखो, सीखो नहीं करना शुरू करो। ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो तो वैसे भी हैं, बट वो अभी फिलहाल आई डोंट नो क्या रीज़न है आप लोगों की जो आप लोगों का 4 महीने से बात नहीं हो रही है, बट वो आना चाह रहे हैं आपके पास। लेकिन वो तभी आएंगे जब आप अपनी एनर्जी में रहोगे। हमेशा देखना, वुमेन जब अपनी एनर्जी में रहती है, वुमेन जब इतनी फेमिनिन एनर्जी में रहती है, ब्यूटीफुली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट और ग्रो और हैप्पीनेस वाले फेज में रहती हैं, ऑटोमेटिकली सामने वाला ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाएगा आपसे। सो वो वही होना चाह रहे हैं और वो वापस आने के लिए यही जो क्वालिटी है वो आप में देख रहे हैं मेरे ख्याल से। एंड यस, लाइट या शाइन या रोशनी, जो भी बोलो, जिस भी वर्ड में आप इसको ले लो, वापस आती है जब आप अपने अपने आप को चमकाने का मौका देते हो। मतलब अपने आप पे आप वर्क करते हो ना, तभी आती है शाइन, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को शाइन अगर करना है उसको, तो ऑफ कोर्स उसको चमकाने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो शाइन करेगा। कोई गंदा हो रखा है, कोई चीज़ को साफ करना पड़ेगा ना, तभी वो साफ करके अच्छा दिखेगा। तो वो जो अच्छा दिखोगे आप, ग्रोथ और हैप्पीनेस पे वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो वेट करो, लेकिन सेल्फ वर्थ के साथ। अगर वो वापस आते हैं तो वो खुद पे प्राउड, आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि आपने खुद को नहीं छोड़ा, ठीक है। यही आपके लिए सबसे अल्टीमेट मैसेज है। एंड एवरीवन, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सामने वाले की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचता है, कब आएगा। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स योर एनर्जी। आप अपने पर वर्क करना तो सीखो, ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एकता शर्मा, एकता शर्मा बोल रही हूँ मैं, एकता शर्मा ठीक है। खुशी पांडे, खुशी पांडे, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपने अभी तक नहीं करा है, आपको करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता, आप फॉलो करोगे मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी। एंड ऑल्सो खुशी पांडे, यू हैव टू शेयर दिस लाइव सेशन। सुधीर अग्निहोत्री, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ थे आप? Hello, ma'am. Hello, Sudhir Agnihotri. How are you? Okay, ma'am. Thank you so much for the Kushi Pandey. You should claim this energy, not for me, but for yourself. Okay. एंड येस, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस लाइव सेशन, और ये एनर्जी और ज़्यादा वाइब्रेशन में आ जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस लाइव सेशन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड एवरीवन, जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइए किसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है इस टाइम पे। इंस्टाग्राम आईडी प्रतिभा मेश्रम मिस्टिक बिनी इज़ माई आईडी। माई मॉडरेटर आर कंटिन्यूसली गिविंग यू माई आईडी, बट आई डोंट नो व्हाई आर यू नॉट पिकिंग इट अप। प्लीज़ आप मिस्टिक पिनी जो एकता शर्मा पुट कर रही है मेरी आईडी को, सब लोग मेरी आईडी को मेरे मॉडरेटर्स रख रहे हैं, बट आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? थैंक यू खुशी पांडे, मीन्स अ लॉट। एंड ऑल्सो शेयर दिस। वेब ऑडियो भेजी सुधीर अग्निहोत्री, मेरे लाइव सेशन छोड़ के और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बिजी थे? आई एम सॉरी सुधीर अग्निहोत्री, आई नो आप बिजी हो गए, आई नो डे टू डे लाइफ में इंसान बिजी होता है। पूजा, इज देयर एनी होप फॉर बेबी? प्लीज़ प्लीज़ आप अपना मुझे स्टोरी बताइए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। पूजा, आप बेबी का क्वेश्चन अगर आप रख रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा क्योंकि इट्स अ वेरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है,
ठीक है? आप मुझे बताइए क्या बात है, क्या नहीं है। प्लीज़ आप अपनी स्टोरी थोड़ा-सा रखिए और अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही रखिए एंड अगर आपको नहीं कंफर्टेबल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी रख सकते हो सो दैट मैं आपकी स्टोरी थोड़ा सुन सकूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब लाइव आओगे तो आपकी रीडिंग और अच्छे से हो पाएगी। अगर आपको फ्री रीडिंग ही चाहिए तो। और अगर आपको ज़रा भी पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आपको और डिटेल में जानना है तो आप पेड रीडिंग कर सकते हो। बट क्योंकि आपका बेबी का मैटर है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये इतना कट टू कट क्वेश्चन कि कहाँ मेरे बेबी की होप है, यही सब कुछ, इसी से रीडिंग नहीं हो पाएगी, आपको थोड़ा इंसाइट देना पड़ेगा। टेल मी हु हैज़ फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, आई विल टेक दैट क्वेश्चन एंड ऑल्सो जिसने मेरा लाइव सेशन शेयर कर रखा है, कमेंट कर रखा है, मैं उनका क्वेश्चन ले लूँगी। पूजा, ठीक है? पूजा आप ऐसे परेशान मत हो, आपने बहुत बैक टू बैक मैसेज किया है, आप थोड़ा-सा आराम से करो, आराम से करो, ओके? आप आराम से इंस्टाग्राम पे आप अपनी बात रखो, पहले अपनी बात रखो बस। आप जब बात रखोगे आप उतने में ही थोड़ा लाइट फ़ील करोगे। आई एम हियर टू टेक योर क्वेश्चन, आई डोंट वरी, मैं आपका क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करूँगी। आप जब भी लाइव आओगे आपको सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दे दूँगी बिकॉज़ बेबी के क्वेश्चन आई नो कितने सेंसिटिव होते हैं। आप काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे हो शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट अगर आप ऐसा कुछ है, आप काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे हो, बेबी का एक्सपेक्ट कर रहे हो और हो नहीं रहा है, ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई कुछ भी है तो मेक श्योर टू गिव योर डिटेल्स। आप अपने हस्बैंड का अपना डिटेल्स दो सो दैट आपकी रीडिंग और स्पेसिफिक हो सके, ओके? क्योंकि सिर्फ बेबी आपका नहीं है, आपके हस्बैंड का भी है ना, तो दोनों की एनर्जी होना इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा, क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है? मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोड और जिसने भी लाइव सेशन शेयर किया है, कमेंट किया, मैं उनका क्वेश्चन ले रही हूँ। सिर्फ कमेंट डन होने से मेरा थोड़ा-सा ग्रोथ रुक रहा है। मैं बहुत, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ईज़िली मान जा रही हूँ लोगों के लिए। मैं बहुत जल्दी ईज़िली रीडिंग दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बिकॉज़ आई नो मेरी ग्रोथ फिर बहुत बेयर मिनिमम ग्रोथ हो रही है। प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट इफ यू हैव, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ टेल मी आपने करा है इंस्टाग्राम पे फॉलो? अंकिता, यस अंकिता। अंकिता, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है, जस्ट टेल मी तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूँ। आई हैव क्लियरली मेंशन ऑन माय लाइव टाइटल कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय पे जिसने लाइव सेशन को शेयर किया है एंड कमेंट किया है एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, मैं उनकी रीडिंग ले रही हूँ इस समय पे। प्रिया सिंह, टेल मी क्या आपका क्वेश्चन क्या है? आयुष त्रिपाठी, प्रिया सिंह, इट्स ओके लवली कुमारी, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं इट्स ओके, जस्ट टेल मी आपने लाइव सेशन शेयर किया है और कमेंट किया है, आई विल टेक योर क्वेश्चन। प्रिया सिन्हा, आप आयुष त्रिपाठी टू फीलिंग फॉर मी, वो अपने एडिक्शन की वजह से मुझे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। प्लीज़ नो कॉन्टैक्ट पे थी पर अभी थोड़ी बहुत बात हो जाती है। ओके ओके प्रिया सिंह, मैं आपका ले लेती हूँ एंड ऑल्सो अंकिता, प्लीज़ टेल मी कि आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है। अब जाके मुझे एक नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं अभी तक चिल्ला रही थी, कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है। लाइव और शेयर सेशन शेयर और कमेंट तो बहुत दूर की बात है, बट एटलीस्ट इंस्टाग्राम मुझे नोटिफिकेशन बता रहा है तो तब मैं पता कर पा रही हूँ कि हाँ 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 मुझे फॉलो हुआ है। ओके प्रिया सिंह, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। ऑल्सो प्लीज शेयर एन इंस्टाग्राम आयुष त्रिपाठी, ओके। ट्रू फीलिंग, वजह से कमिटमेंट, मैत्री, अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते तो आपका मुझे कमेंट भी तो शो नहीं हो रहा। आपका कमेंट नहीं शो हो रहा है मुझे, आपने कमेंट किया है।
थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चन। ओके, मैं इस समय पे मैं प्रिया सिंह का क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद अंकिता मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगी। ओके, एंड एनीवन जो भी इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता है, डोंट वरी, एटलीस्ट कॉमेंट, एटलीस्ट शेयर दिस लाइव सेशन। ओके, हाय सोनिया, सोनिया मेक श्योर ये लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कमेंट एंड शेयर लाइव सेशन। अगर ऐसा कुछ है उन लोगों के प्लीज मुझे नाम दे दीजिएगा। एंड यस, माय मॉडरेटर इज हियर, सोनिया एंड एकता शर्मा एंड सुधीर अग्निहोत्री। एनीवन प्लीज आप लोग इन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, और आप लोग अपना नाम अपना प्लीज बता दीजिए कि आपने लाइव सेशन शेयर कर दिया है, कमेंट डन है, एंड यस आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। एनीवन जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चलाता है, इट्स ओके गाइस, इट्स ओके, बट एटलीस्ट शेयर दिस लाइव सेशन एंड ऑल्सो कमेंट। ये मेरे लिए हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रिया सिंह क्वेश्चन है, आयुष त्रिपाठी ट्रू फीलिंग वो अपने एडिक्शन की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, एंड थैंक यू सुधीर अग्निहोत्री, थैंक यू गगन। ओके, जिसका हो चुका है मैं इन लोगों के क्वेश्चन ले लूँगी। ओके अंकिता, आई नो इसके बाद आप ही का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर टू मेंशन योर क्वेश्चन। अंकिता, आई नो आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लिया है। प्रिया सिंह का क्वेश्चन है, आयुष त्रिपाठी ट्रू फीलिंग वो अपने एडिक्शन की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, पहले नो कॉन्टेक्ट का फर्दर बात हो रही है। एवरीवन प्लीज कॉन्टैक्ट सोनिया, सोनिया माय मॉडरेटर, वो जिनका भी नाम लेंगी मैं उनका क्वेश्चन ले लूँगी। एंड यस, थैंक यू चेरी, थैंक यू सो मच चेरी, थैंक यू। प्रिया सिंह, आयुष त्रिपाठी ट्रू फीलिंग वो अपने एडिक्शन की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सोनिया लिखिता जॉन का क्वेश्चन थोड़ा सा वैलिड हो गया क्योंकि उन्होंने बोला था कि कल मैंने उनका प्रपोजल नहीं लिया है। सो यस, लिखिता जॉन, यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर, यू कैन ऑल्सो टेक माई पेड सेशन ना, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज आप बैक टू बैक अगर एक एक सिंगल क्वेश्चन लाओगे फ्री रीडिंग में, आप आई नो आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी भी देनी पड़ेगी, जैसे आज आपने दी, वो भी बहुत शॉर्ट में। अगर आप पेड रीडिंग लेते हो तो आपको थोड़ा डेप्थ में थोड़ा गाइडेंस मिलेगी, बट एनी हाउ अगर आपको सही में बस फ्री रीडिंग्स चाहिए यहाँ पे, एंड आप फ्री रीडिंग्स के लिए ही आए हो अपना माइंड बना के, सो कोई बात नहीं। सोनिया उन्होंने बोला है कि हाँ वो सेम क्वेश्चन था, बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैंने रिजेक्ट कर दिया है उनका प्रपोजल, और अब मुझे जानना है उनकी करंट फीलिंग्स। सो ओके, मैं उनका क्वेश्चन ले रही हूँ इस समय पे। सोनिया, कृतिका जॉन को कोई बात नहीं, आप जान दो, आप और चीज़ और लोगों पे फोकस करो। ओके सोनिया, थैंक यू सोनिया। हाँ कल यही क्वेश्चन था, बट वही उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, नाउ मूविंग टू प्रिया सिन्हा। आयुष आपको हाईली एडमायर तो करते हैं प्रिया सिन्हा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, सो मतलब है कि वो आपको एक कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, मैग्नेटिक एनर्जी जैसा होता है ना, वैसे उस टाइप से आपको देखते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग जेन्युइन भी हैं, और उनके दिल में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों ही है आपके लिए। लेकिन ये भी सच है प्रिया सिन्हा, प्रिया सिंह या प्रिया सिंह, हाँ प्रिया सिंह, ओके, कि वो कभी कभी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन या इनर इनबैलेंस का भी सिग्नल देता है, और यहाँ वो एडिक्शन जो आप बोल रहे हो वो सच में आ रहा है, एंड उनके दिल में आपके लिए जगह जो भी हो है, पर वो अभी भी अपनी लाइफ के किसी स्ट्रगल जैसे कि एडिक्शन या फियर ऑफ इमोशनल वनरेबिलिटी से बैटल कर रहे हैं, और जो आपने बोला इसी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट कि क्या, तो येस फीलिंग्स हैं, बट वो अपने कंट्रोल इशू या डिपेंडेंसी पैटर्न की वजह से इमोशनली रेडी नहीं लग रहे हैं। अब बात ये है कि वो रेडी क्यों नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे,
क्योंकि वो अभी भी अपने कंट्रोल इश्यूज़ या डिपेंडेंसी वाला जो पैटर्न है ना, उसकी वज़ह से इमोशनली रेडी नहीं लग रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट से बहुत इंस्पायर्ड हैं। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं खुद से ही लड़ रहे हैं वो। सो गाइडेंस आप सुनो बस, ठीक है? जब कोई अपने आप की लाइट को से खुद के उन अच्छा ठीक है, मैं क्लियरली आपको बताती हूँ, उनका डिसीज़न वैसे भी नहीं की तरफ आने वाला है, ठीक है? नहीं होने वाला है उनका डिसीज़न, क्योंकि वो खुद से ही जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस वो अंधेरे में जा रहे हैं ना, वो अपने को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद की सोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ज़रूरत है और उनके डिसीज़न्स वो जो डिसीज़न लेंगे ना, वो सब समझना बहुत दूर की बात है। वो अभी खुद के ही डि अपने स खुद को ही समझने की प्रोसेस में हैं। और अगर आपका दिल कहता है ना कि वेट करो, तो बाउंड्रीज़ के साथ वेट करो प्रिया सिंह। मतलब आई नो आपने जब लिखा है कि नो कॉन्टैक्ट है, बट अभी थोड़ा-थोड़ा बात कर रहे हैं, बट वो थोड़ा-थोड़ा सिर्फ़ इसलिए बात कर रहे हैं, आपने अगर पूरा मैसेज सुना है मेरा, कि वो आपके स्ट्रेंथ और सपोर्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। वो आपको एज़ अ कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपकी अट्रैक्शन भी पूरा-पूरा है, लेकिन उनका कंट्रोल इश्यू भी है और डिपेंडेंसी पैटर्न भी है। अब जब डिपेंडेंसी पैटर्न आ जाता है, तो वो आपके इमोशनल सपोर्ट और आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन वो खुद ही से लड़ रहे हैं ना, खुद से ही लड़ रहे हैं वो। अब इंसान खुद से ही लड़ता रहेगा, खुद को ही सोचता रहेगा, खुद को ही समझता रहेगा, तो वो डिसीज़न क्या खाक देगा? डिसीज़न तो कहाँ से देगा वो डिसीज़न आपको? मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, या तो आप ऐसा मान लो कि हाँ ठीक है, मैं इसको ज़िंदगी भर सँभालती रहूँगी ऐसी जैसी हालत में है ये। तो आप अगर रेडी हो ये सब करने के लिए, तो फिर रेडी हो जाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं मेरे को ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए, तो थोड़ा अपनी बाउंड्रीज़ आप सेट करो, बाउंड्रीज़ के साथ वेट करो, बिकॉज़ उनका सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो अभी भी वही चीज़ों में हैं, वो अपने को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप हील कर चुके हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो गिल्ट के बिना मूव ऑन कर सकते हो। आपके लिए यही ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ये नहीं आ रहा जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्या वो अपने एडिक्शन की वज़ह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो सच बात है, वो अपने क एडिक्शन की वज़ह से ही कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सो आपके लिए ही आ रही है गाइडेंस कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए और गिल्ट के बिना मूव ऑन आपको कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, गिल्ट नहीं आना चाहिए मन में कि अरे मैंने उसको छोड़ दिया, वो अच्छा तो था ही। अच्छा तो सब होते हैं ना, अच्छे इंसान तो सब ही हैं, सारे अच्छे हैं, बुरा कौन है? तो आप प्लीज़ अपने को सँभालो और अपने को आप अपनी बाउंड्रीज़ लगाओ। अब ऐसा है कि वो बड़ा है, ऐसा छोटा बच्चा तो है नहीं कि ये अपने को सँभाल नहीं सकता। अब जब एडिक्शन है तो वो उनकी खुद की है, वो खुद देखेंगे, मैनेज करेंगे। बट जस्ट बिकॉज़ आप उनके साथ हो ना, तो वो आप पे हद से ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट से इंस्पायर्ड हो रहे हैं और वो आप खर्च पे खर्च करे जा रहे हो। ठीक है, प्रिया सिंह, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप सिर्फ़ टारो रीडिंग नहीं, एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ काउंसलर भी आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगा कि ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं है, ये आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ओके प्रिया सिंह, एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, प्लीज़ सोनिया, जेएसए, ओके जेएसए। अ सोनिया, मैं आपको कुछ नाम दे रही हूँ, प्लीज़ आप उनके क्वेश्चन ज़रूर ले लेना। जेएसए से पहले सोनिया, जेएसए से पहले प्लीज़ अंकित का क्वेश्चन ले लो, अंकिता का क्वेश्चन ले लो प्लीज़। जेएसए से पहले अंकिता का क्वेश्चन ले लो। मैंने अंकिता ने मुझे फॉलो कर दिया है और मतलब जब आप आए थे उससे पहले की बात है। अंकिता और 1-2 लोग और थे शायद, पता नहीं। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं जैसे ही उनके नेम आएँगे मैं बताती जाऊँगी। ओके प्रिया सिंह, थैंक यू। एंड जेएसए यू हैव टू वेट, ओके। अंकिता आपसे पहले आ चुकी थी और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है अभी-अभी। और अंकिता का क्वेश्चन है, अंकिता, विल आशीष एंड आई बी डिवोर्स्ड बाय नेक्स्ट ईयर? विल आई मीट माय ट्विन फ्लेम? Ankita, let's focus on, first of all, let's focus on your divorce, okay? Of course, after that you have to heal. ये प्रोसेस है, आपको इंस्टेंटली अगर ट्विन फ्लेम की तलाश है तो पहले आपको डाइवोर्स से क्लैरिफाई होना पड़ेगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि आई विल टेक योर क्वेश्चन डाइवोर्स वाला पहले, ठीक है? आप डाइवोर्स और ट्विन फ्लेम की एनर्जी को आप मिक्स मत करो, बिकॉज एक ही कार्ड में आपको दो एनर्जी नहीं आ पाएगी, ठीक है? हम सिर्फ इस समय पे आशीष और आपके बीच डाइवोर्स क्या होगा और नहीं होगा की बात यहाँ पे एनर्जी पिक कर लेती हूँ मैं। उसके बाद लगे तो आप नेक्स्ट सेशन में आओ किसी भी टाइम पे। अगर आपको इतना फ्री सेशन के लिए ही आना है तो आप फ्री लाइव सेशन कभी भी अटेंड कर सकते हो और आप क्वेश्चन दोबारा रख सकते हो। और अगर आपको पेड सेशन चाहिए
तो फिर प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि आपने फॉलो कर दिया है, और वहाँ पे आप मुझसे पेड सेशन ले सकते हो। आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी। एंड ऑल्सो अंकित, अंकिता एंड एवरीवन, मैं सबको बोल रही हूँ जिसको भी पेड सेशन लेना है, प्लीज़ मेक श्योर टू वेट, बिकॉज़ स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा फुल होते जा रहे हैं बैक टू बैक। अगर पेड सेशन के लिए आप आते भी हो तो आपको थोड़ा टाइम, आप प्लीज़ अपनी स्टोरी, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, अपना पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उनका डेट ऑफ बर्थ, वो सब मेंशन करके आओ। अपना क्वेश्चन रखो, जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया है, मैसेज, टेक्स्ट बेस्ड रीडिंग या वॉइस कॉल रीडिंग या वीडियो कॉल रीडिंग या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैंने मेंशन किया है। एंड येस, मेक श्योर टू बुक योर स्लॉट अर्ली एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज इस मंथ, अगस्त मंथ के बुक्स बहुत जल्दी स्लॉट्स बुक हो रहे हैं। मैं शायद, अगर अगस्त में कोई और रीडिंग के लिए भी आता है तो शायद मैं नहीं ले पाऊँगी, तो इसलिए अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके ले लेना। ओके। अंकिता का क्वेश्चन है, विल आशीना आई बी डिस्कवर्ड बोल रही हूँ, डाइवोर्स्ड बाय नेक्स्ट। विल, अंकिता का क्वेश्चन है, विल आशीष एंड आई बी डाइवोर्स्ड बाय नेक्स्ट ईयर। अंकिता का क्वेश्चन है, विल आई एंड आशीष बी डाइवोर्स्ड बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अंकिता, अगर आपने, सोनिया, येस एवरीवन, प्लीज़ डोंट यूज़ इमोजी, बिकॉज इमोजी से मुझे बहुत ज़्यादा ही अटेंशन में ग्रैब कर लेती हूँ। एंड सोनिया, प्लीज़ मेक श्योर टू टेक आदित्य दीक्षित क्वेश्चन। ठीक है, आदित्य दीक्षित भी 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। एंड यस अंकिता एंड सोनिया, 2-3 नाम मैं ले रही हूँ, आप सुन लेना। अंकिता का क्वेश्चन ले रही हूँ, प्रतिभा एंड आदित्य। यस, मुझे अभी फिलहाल यही नाम याद आ रहे हैं। और चेरी, चेरी, अंकिता, सोनिया, चेरी ने भी मेरे को फॉलो करा है, चेरी ने भी फॉलो करा है, सो यस चेरी का भी। ये 4 नेम, ठीक है। अंकिता का मैं रीडिंग कर रही हूँ, एंड देन प्रतिभा, आदित्य एंड चेरी। ओके। हाँ, आदित्य को तो वैसे छोड़ना चाहिए था मुझे, बट स्टिल मुझे अभी फिलहाल इतने नाम याद आ रहे हैं तो मैंने फटाफट बोल दिए हैं। एंड एवरीवन, अगर कोई छूट रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू मेंशन। मैं बिल्कुल भूल रही हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे करा है, अंकिता। अंकिता, यस, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। आई एम प्लीज़ रीडिंग, मैं जब कर रही होती हूँ तो मैं सच में मैसेज नहीं देख पा रही होती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, अगर कोई मिस आउट भी हो जाता है, वेरी वेरी सॉरी, सही में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मुझे कोई मिस आउट अगर हो रहा है तो। ठीक है। एंड यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो अंकिता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक नर्चरिंग, ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि डाइवर्स होगा या नहीं, पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, डिपेंड मतलब डिपेंडेंट तो फॉर श्योर नहीं रहने वाले हो, मतलब लेकिन ये इमोशनल मेच्योरिटी और स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। सो हम जो इंसाइट देखने वाले हैं इस कार्ड के थ्रू, क्या डाइवोर्स कंफर्म है? सो नो, कार्ड डाइवोर्स की क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है अंकिता। और आपने ट्विन फ्लेम के बारे में पूछ दिया, आई डोंट नो हाउ, बट अभी फिलहाल डाइवोर्स कंफर्म नहीं लग रहा है। कार्ड की डाइवोर्स की क्लियर इंडिकेशन नहीं, ये कार्ड डाइवोर्स की क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ये कार्ड ज़्यादा पेशेंस और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग और इमोशनल मेच्योरिटी की एनर्जी लेकर आता है। ऐसा लगता है कि सिचुएशन में एक तरफ शायद आप अभी भी इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, या शायद आप रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहते हो, चाहे रिलेशन टूट रहा हो। अब आई डोंट नो हु इज मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप, ईदर यू और योर पार्टनर। स्टिल होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी आ रही है, स्टिल होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी आ रही है अंकिता। अंकिता, आते थे दीक्षा, सही में आपका क्वेश्चन ना प्लीज रहने दो। आप एक तो स्टार्टिंग में आते नहीं हो, और आपका क्वेश्चन मैं अभी नहीं करूंगी। सही में सही कह रही है सोनिया, मैं नहीं करने वाली। अभी मैं नए लोगों को चांस दे रही हूँ। आते थे दीक्षा, आप तो अच्छे हो ना, प्लीज प्लीज अभी रहने दो, अभी रहने दो। आपका पार्टनर, ओके ओके अंकिता, इट्स ओके जैसे, इफ यू डोंट यूज इंस्टाग्राम डोंट वरी। जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, एटलीस्ट शेयर दिस लाइव सेशन एंड कमेंट। आप इतना भी लिखोगे ना कि मैंने शेयर करा है लाइव सेशन, अब लिखना नहीं है, सिर्फ करना भी है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है कि आप सच में करके आए हो या ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। ठीक है, सो आप करके आओ, आपका मैं पक्का ले लूंगी।
ले लूंगी मैं पक्का, मैं किसी को नहीं भूलती। ही इज मूविंग दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। अंकिता आई डोंट नो, अंकिता आई डोंट नो बोल रही हूँ, बट ये सच बात है कि आपका कार्ड स्टिल होल्डिंग ऑन वाला है। आप या आशीष अभी भी इस रिश्ते में एक सेंस ऑफ ड्यूटी, कंफर्ट या स्टेबिलिटी फील कर रहे हो। अब डिले तो इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज अगर ये डाइवोर्स होना है भी तो इमीडिएट नहीं लग रहा है। मतलब डाइवोर्स अगर हो भी जाएगा ना तो इमीडिएट नहीं हो रहा है। ओके, ये प्रोसेस बहुत डिलेड है या मेच्योरली हैंडल होने वाला हो सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच से मेरा मतलब है लीगल या इमोशनल डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। दोनों तरफ से एक संभाल के चलने वाली एनर्जी में है इस समय पे भी। ओके ओके प्रतिभाचारी ओके लितिका जॉन, हाँ लितिका जॉन आपका भी था। लितिका जॉन मैं आपका ले लूंगी, डोंट वरी। ओके 1 2 3 4 4 नंबर हो गए हैं मेरे पास। एंड यस 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 अंकिता। सो क्योंकि जो रिश्तों को तोड़ते हैं ना वो इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब जो रिश्तों को संभालते हैं वो भी होते हैं। दोनों केस में इमोशंस ही हैं एक तरीके से। अब जो रिश्ते को तोड़ रहा है वो भी एक इमोशन है और जो रिश्ते को संभाल रहा है वो भी एक इमोशन है। अब आप किस इमोशन को प्रायोरिटी दोगे वही फ्यूचर मतलब आपका डिसाइड करने वाला है। यही हो रहा है एक तरीके से। आपके केस में टाइमलाइन कुछ नहीं आ रही है, टाइमलाइन से ज़्यादा आप दोनों को गाइडेंस आ रही है। इनफैक्ट आप दोनों में से डिले इसलिए हो रहा है, और डिले का मतलब है कि जो आप टाइमलाइन बोल रहे हो शायद उस समय पे भी ना हो। और अगर आपको टाइमलाइन इतना ही एक्यूरेट टाइमलाइन चाहिए अंकिता, आपको पेड सेशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि पेड सेशन में एटलीस्ट आई विल पुल 3 कार्ड्स फॉर यू, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 2026 का पूछा, ठीक है 2026 में नहीं हुआ, 2026 7 में हो सकता है। उसका कार्ड उठाऊंगी, 2028 का कार्ड उठाऊंगी, आपके लिए 2026 का कार्ड उठाऊंगी, फिर जाके चेक होगा, ठीक है। और ये सब कुछ पेड सेशन में पॉसिबल है बिकॉज लाइव सेशन इज ऑल अबाउट क्विक 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 एनर्जी, और यहाँ पे इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। सो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। बट क्योंकि स्टिल होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी आ रही है, सेंस ऑफ ड्यूटी की एनर्जी आ रही है, कंफर्ट स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, तो डिले पॉसिबल है। ओके डिले पॉसिबल मतलब आपका डाइवोर्स ऑफ कोर्स डिले हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है। प्लीज डोंट यूज इमोजी गाइस, एवरीवन डोंट यूज इमोजी, अदरवाइज सही में सोनिया टाइम आउट दे देगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैक टू बैक लोग इमोजी यूज़ कर रहे हैं, उससे मेरा पूरा फ्लो टूट जा रहा है। मैं डायरेक्टली उनकी तरफ मेरा ध्यान चले जा रहा है। थैंक यू जैसे। एंड नाउ मूविंग टू थैंक यू अंकिता। एनी फर्दर गाइडेंस अगर चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ओवर देयर। एंड यस प्रतिभा 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 where are you Pratibha? Izaz current feeling less contact. Okay. Pratibha question Azaz. Please everyone make sure to write your थैंक यू अंकिता। आप अपना पार्टनर का बताइए, वो बॉयफ्रेंड है हस्बैंड है, क्योंकि काफ़ी लोग मिक्स एंड मैच कर दे रहे हैं। आप वो सिर्फ करंट फीलिंग पूछ रहे हैं लेकिन मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो हस्बैंड है। अगर हस्बैंड है तो प्लीज़ मेक श्योर टू मेंशन हस्बैंड सो दैट वो एनर्जी बॉयफ्रेंड वाली रीड ना हो पाए। काफ़ी लोग अब बता नहीं रहे हैं, फिर वो बाद में बता रहे हैं नहीं नहीं हस्बैंड है, फिर वो रीडिंग एकदम ही चेंज हो जा रही है। बाप रे आदित्य दीक्षित, दीदी कमेंट डन, दी क्या मेरी लाइफ नॉर्मल होगी जैसे और लोग एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय तो कर रहे हो आदित्य दीक्षित, आप लाइव सेशन में एंजॉय तो कर रहे हो, एंजॉय करो। यहाँ पे बॉयफ्रेंड है, ओके। आदित्य दीक्षित आप लाइव सेशन एंजॉय करो बस। ओके प्रतिभा का क्वेश्चन है इजाज करंट फीलिंग लेस कांटेक्ट। प्रतिभा का क्वेश्चन है इजाज की करंट फीलिंग लेस कांटेक्ट। प्रतिभा का क्वेश्चन है इजाज करंट फीलिंग लेस कांटेक्ट। थैंक यू सुधी अग्निहोत्री। शराब अग्निहोत्री बोल रही हूँ मैं, शराब आदित्य दीक्षित। अरे दी लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई करो ना, जाके पढ़ाई करो। मुझे बताओ जरा क्या पढ़ रहे हो आप, जरा मुझे बताना जरा क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ क्या रहे हो, जरा आप मुझे बताओ। प्रतिभा का क्वेश्चन है इजाज करंट फीलिंग लेस कांटेक्ट।
इजाज करंट फीलिंग लेस कॉन्टैक्ट यूनिवर्स, प्लीज 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 मुझे बताइए। प्रतिभा का क्वेश्चन है इजाज करंट फीलिंग लेस कॉन्टैक्ट। सी मैट, वाओ सी मैट पढ़ रहे तुम, गुड गुड। ओके प्रतिभा, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं इजाज की करंट फीलिंग लेस कॉन्टैक्ट में, एंड द कार्ड इज द चैरियट। ओके, ये एक पावरफुल कार्ड है जो कि डिटर्मिनेशन, इमोशनल कंट्रोल और फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है। चाहे कॉन्टैक्ट कम हो, लेकिन इजाज की तरफ से अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक डायरेक्शन का कंफ्यूजन चल रहा है। अब इजाज की फीलिंग्स अगर हम देखें, दिल और दिमाग के बीच में एक तरीके से बैटल चल रही है। एक तरफ आपके लिए अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। शायद किसी डिस्टेंस या पर्सनल ग्रोथ की वजह से, पर्सनल गोल्स की वजह से अभी फोकस कहीं और है, लेकिन आप उनके माइंड में कंप्लीटली आउट नहीं हो। ओके, एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि वो कांटेक्ट करने का मन बना रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ कंट्रोल के साथ चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं। उनका अपना कंट्रोल ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। इम्पल्सिव डिसीजन उनका कभी नहीं आएगा आपकी तरफ। इम्पल्सिव का मतलब होता है ना, जैसे रैंडमली मन करा कॉल करिए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। एंड लेस कॉन्टैक्ट क्यों है? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है या फिर ईगोइस्टिक है। अब या तो उनका सेल्फ डिसिप्लिन या ईगो उन्हें रोक रहा है, हो सकता है वो किसी पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंजेस में हो। शायद वो देखना चाहते हैं कि आप कितना वेट करती हो या आप कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, एंड फाइनल मैसेज फॉर यू, एजाज के इमोशंस रुके नहीं हैं, बस डायरेक्शन और टाइमिंग पे काम हो रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी में बैलेंस रखोगे तो कुछ क्लियर सिग्नल जरूर मिलेंगे। एंड एवरीवन, जहाँ पे भी नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट की बात होती है ना, हमेशा देखना, जब आप अपने पे फोकस करोगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। प्लीज मेक श्योर टू ग्रूम योरसेल्फ एंड डू योर हीलिंग फर्स्ट। आप अपने अपने को बैलेंस रखो, अपने को अपने बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस करके चलो। आपको एकदम एकदम से तो नहीं, बट ग्रेजुअली आपको देखना कहीं ना कहीं से साइन मिल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ पुल हो ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सुधीर अग्निहोत्री। एंड नाउ हाय कार्तिक, thanks Pratibha. And now Cherry, where are you Cherry? Can you tell me about my future love life and career? चेरी, आपको एक टॉपिक जानना है या दोनों टॉपिक जानना है? बिकॉज एक टॉपिक अगर आपको अच्छे से जानना है तो फ्यूचर लव लाइफ, और अगर दूसरा टॉपिक करियर है तो फिर आप एक टॉपिक का क्वेश्चन पूछो। अदरवाइज दोनों टॉपिक अगर मैं लूंगी तो फिर वो दोनों टॉपिक आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, कुछ इंसाइट। एक ही कार्ड में सब कुछ नहीं आ पाता है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक ही कार्ड में सब कुछ दिख कर बोल पाऊँ या रीडिंग कर पाऊँ मैं आपकी। जिसमें भी आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ मेक श्योर टू राइट लव या करियर, जिसमें भी आपको ज़्यादा जानना है, सो दैट उस कार्ड की रीडिंग में उस डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छे से ले पाऊँ। लव, ओके चेरी, अगर आपको लव लाइफ के बारे में इतना ही ब्यूटीफुल जानना है तो गेट रेडी, मैं आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से करूँगी। ओके चेरी, शिव वैष्णव, हाय शिव वैष्णव, कैसे हो आप शिव वैष्णव? शिव वैष्णव, देखना तो ये है कि क्या आज आपका क्वेश्चन होगा।
कार्तिक शिशिर, मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगी आज, तो बिकॉज़ मैं बहुत मेंटली मैं रेडी हूँ आपके लिए, सो डोंट वरी। मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे जो बात कही थी कि पेड सेशन, बट मैं पेड सेशन के लिए भी रेडी नहीं हो पाई आपके साथ। आई नो आप पे करने के लिए रेडी थे, बट मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड नाउ अगर आपको चैनलाइज़ मैसेज चाहिए, सो मेक श्योर टू राइट हर नेम एंड बस राइट हर नेम, ओके? आई नो कार्तिक, मैं आपसे पेड सेशन ले सकती थी आराम से, बट ठीक है, जबकि आपने ऐसे बोल दिया कि फॉल्स प्रॉमिसेस या स्कैम वगैरह की, कहीं स्कैम तो नहीं है, बट फिर वो थोड़ा सा मेरे दिल पे लग गई, तो मुझे लगा कि जब सामने वाला इतना डाउटफुल है तो फिर छोड़ो, फिर क्या रीडिंग लेना। इससे बढ़िया जब भी आप अपने टाइम पे, जो कि आज आप आ ही गए हो लाइव सेशन में, तो आज मैं आपका ले लूँगी। एंड यस, आप अपना क्वेश्चन प्लीज़ मेंशन कर देना, मैं आपका पक्का ले लूँगी, ओके? नो 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 कार्तिक शीर्षत, आप सॉरी मत बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं रेडी नहीं हो पा रही थी आपके लिए, ये भी सच बात है, मैं रेडी नहीं हो पा रही थी, ठीक है? ऐसी सॉरी वाली कोई बात नहीं है। फिर कुछ जो भी कॉन्वर्सेशन होती है वो किसी रीज़न की वजह से होती हैं, और अगर मेरा वहाँ पे पेड सेशन देने का नहीं हो पाया तो किसी रीज़न की वजह से हुआ होगा, ओके कार्तिक? आप प्लीज़ सॉरी मत बोलो, ओके? I know, Karthik, I know. And now moving to, please make sure to mention your question, Karthik. I will do your reading for sure. Channelize message जो भी आ रहा होगा, I hope आपको अच्छा ही channelize message मिले. And now Cherry, आपका question है, can you tell me about my future love life? Can you tell me about my future love life? Cherry का question है, can you tell me about my future love life? Cherry को अपने future love life के बारे में जानना है, please guide her, tell her. चेरी, इतना क्यूट कार्ड आया आपके लिए यार, आप जैसे हो वैसे ही कार्ड आ गया आपके लिए। चेरी आपका नाम है और चेरी जैसा कार्ड आ गया है, चेरी। टू ऑफ कप्स, ओके। सो यस चेरी, टू ऑफ कप्स आया है, सो यस, टू ऑफ कप्स इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर लव रीडिंग, ठीक है? इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिक होके बोल दिया था आपको कि आप किसी एक चीज़ के बारे में पूछो, आपको मैं बहुत ब्यूटीफुली रीडिंग करके दे दूंगी। बिकॉज अगर आप दो चीज़ पूछते तो वहाँ पे लव में मैं थोड़ा बताती, करियर में भी थोड़ा ही हो पाता। कहीं पे आई नो वो भी मैं बहुत अच्छे से दे सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप किसी एक चीज़ में अच्छे से सुन के जाओ, ठीक है? एंड नाउ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है लव रीडिंग के लिए, तो स्पेशली ये कार्ड दिखाता है कि आपके फ्यूचर लव लाइफ में ट्रू पार्टनरशिप, इमोशनल बॉन्डिंग, सोलफुल कनेक्शन का प्रॉमिस है। एंड क्या आगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? एक सोलफुल रिलेशनशिप, ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्यार, अंडरस्टैंडिंग हो, इक्वल गिव एंड टेक, ओके? आप दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करोगे, रोमांटिक न्यू बिगिनिंग या रीयूनियन भी होता है अगर आप किसी पास्ट को लेके सोच रहे थे यहाँ पे, और या फिर आप पूछना चाह रहे थे, बट एनी हाउ आपने फ्यूचर के लिए पूछा है, तो आई एम श्योर रोमांटिक न्यू बिगिनिंग की तरफ ही जा रहा है ये कार्ड। अगर आप सिंगल हो, ओके, तो न्यू लव आ सकता है, और अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, इवन नो कॉन्टैक्ट, तो रीयूनियन भी हो सकता है, ओके चैरी? एंड लव लाइफ आपकी कैसी है? डिवाइन टाइमिंग पे एक सोलफुल रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। मेक श्योर टू लिसन इट वेरी केयरफुली, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा है वो पार्टनर, वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगा, वो अपने समय पे आपको मिल जाएगा, मतलब आपके लिए गॉड से कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके? एंड ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी होगी, आप फील करोगे ये चीज़। शायद ये कनेक्शन आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हो, सोलमेट एंड इवन ट्विन फ्लेम टाइप बॉन्ड होने वाला है ये रिलेशनशिप आपके लिए, फॉर श्योर। नो कार्मिक कनेक्शन, ओनली सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप बॉन्ड, ओके? एंड चैरी, फाइनल मैसेज फॉर यू, दिल के साथ चलने का टाइम आ रहा है आपके लिए, ओके? यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा लव लिखा है जो सिर्फ फिल्मी नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली अलाइन भी होगा आपके लिए, ओके चैरी? थैंक यू फॉर Thank you for what? Thank you for subscribing. And yes, please make sure to follow me on Instagram account that you have done. And please make sure to share with your friends and family. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो ओके चैरी। एंड नाउ
नेक्स्ट, थैंक यू चेरी। अब नेक्स्ट सेशन में आओगे, बट ऑल्सो प्लीज़ प्लीज़ क्या आप पेड रीडिंग करवा सकते हो? प्लीज़ पेड रीडिंग के लिए भी ज़रूर आओ। शिव वैष्णव आप भी पेड रीडिंग के लिए आ सकते हो, बट ठीक है। अब शिव वैष्णव, अभी मेरा इंस्टा यूट्यूब इतना बड़ा नहीं हुआ है ना कि इसके ऊपर चैट है, और मैंने स्कैनर इसलिए नहीं लगाया, ऑन पर्पस नहीं लगा रखा है मैंने स्कैनर, बिकॉज नहीं, मेरे रूल्स के खिलाफ है इस समय पे। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता ना, तब तक नहीं लगाऊंगी मैं। मैंने बना रखा है कि तब तक मैं फ्री रीडिंग्स दूंगी, और पेड रीडिंग के लिए जिसको आना है वो आ सकता है इंस्टाग्राम पे। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पेड रीडिंग नहीं करवा सकते हो, पेड रीडिंग आप करवा सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। और सुपर सिर्फ वैष्णव, आज आपका क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने कल भी वेट किया था, एंड आई नो आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो। मजाक मस्ती तो होती रहेगी, बट आपका क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। शिव वैष्णव, नहीं 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 लगाना मुझे, नहीं लगाना है अभी, नहीं लगाना है मुझे बस। आई जस्ट वॉन्ट टू डू फ्री रीडिंग्स, और लोगों का ट्रस्ट इस टाइम पे मेरे लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर, बस आप लोग मेरे लिए इतना ही कर सकते हो, आप मेरी वीडियो ज़्यादा देखो, और आप मेरे लाइव सेशंस पे आओ, आप इस चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, यही। एंड यस, सोनिया, JSA, ओके, ZSA, वेयर आर यू? कार्तिक प्लीज़ आप सोनिया से बोल लीजिए, सोनिया आपका नंबर आपको दे देंगी, आप किस नंबर पे हैं फिलहाल अभी। JSA, लितिका जॉन, आदित्य दीक्षित, गगन कुसुम, अवेकन हसल, कंचन श्रीवास्तव, इन सब का नंबर है। एंड यस सोनिया, JSA, ZSA, सॉरी, ZSA, ओके। व्हाट्स कमिंग टू ज़ेबा? ओके ज़ेबा, ज़ेबा मेरी फ्रेंड का नाम भी है, जो कि मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, जो कि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। आई डोंट नो, क्या पता आप वही ज़ेबा हो। Okay, what's coming to me? Zeba, married. Okay. बिनी, मेरा नाम बिनी है। आप बस मुझे इतना बता दो जब आप कहाँ से हो, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए, मैं तुरंत बता दूंगी कि आप, मैं आपको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ। नागपुर, नहीं, फिर तो नहीं जानती हूँ मैं जब आपको नहीं जानती, मैं घर से शिव वैष्णव, घर से तो सब होते हैं ना, क्या पता आप तो घर से हो, क्या पता कई लोग ऑफिस से हो, तो कई लोग शॉप से हों। घर से। ओके ज़ेबा, सो यस, ओके ज़ेबा, सो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट्स कमिंग टू मी इन लाइफ, मैरिड है, ओके, व्हाट्स कमिंग टू मी इन लाइफ। रोड पे रहते। ओके, नाउ ज़ेबा का क्वेश्चन है, व्हाट्स कमिंग टू मी इन लाइफ, मैरिड है, व्हाट्स कमिंग टू मी इन लाइफ, मैरिड है। सोनिया प्लीज गीता का क्वेश्चन भी ले लेना, गीता सिन्हा काफी टाइम से आ रही हैं। हाँ, गीता सिन्हा का भी क्वेश्चन ले लेना, प्लीज प्लीज प्लीज, गीता सिन्हा को भी ले लीजिए, इस टाइम पे ज़ेबा का रीडिंग हो रही है, एंड गीता सिन्हा के का भी प्लीज आप नंबर लगा लीजिए, गीता सिन्हा भी बहुत टाइम से आ रही हैं। एंड एवरीवन प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस लाइव सेशन एंड कमेंट, एंड आल्सो फॉलो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के जल्दी क्वेश्चन मैं ले लूंगी। ओके, ज़ेबा का क्वेश्चन है, व्हाट्स कमिंग टू मी इन लाइफ, मैरिड है।
थैंक यू सुधीर अग्निहोत्री, इतना बैक टू बैक आप जो मैसेज कर रहे हैं। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है आपके लिए, ज़ेबा। ज़ेबा, अच्छा चलेगा आपका सब कुछ, ठीक है ज़ेबा। प्लीज़ डोंट यूज़ इमोजी, अदरवाइज सच में टाइम आउट आपको मिल जाएगा, बिकॉज सच में इमोजी से बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा सारा ध्यान इमोजी वाले मैसेज पे चला जाता है, और फिर मैं अब ऑन पर्पसली इमोजी वालों की नहीं लेने वाली हूँ। द वर्ल्ड, ज़ेबा, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव ओमेन है, एंड ये बताता है कि आप अपनी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, और अब आप नए अचीवमेंट्स, पर्सनल ग्रोथ और सोल लेवल सेटिस्फिकेशन की एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। ज़ेबा, आप अपनी डिटेल देना चाहते हो कि मेरे से पूछ रहे हो? लिखिता जॉन अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो हम नेक्स्ट ले लेंगे, ओके, डोंट वरी। हर कोई वेट नहीं कर पाएगा मेरे लाइव सेशन पे, बिकॉज इतनी लेंदी रीडिंग होती है तो। लिखिता जॉन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लिखिता जॉन। एंड यस, मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड हैं इस समय पे, तो आपकी, अगर आप मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, इज इट दैट ज़ेबा, आप मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं? आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, कैसी चलेगी, ये क्या आ रहा है? ज़ेबा प्लीज टेल मी। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मेरिट का बता देती हूँ, फिर आपके पर्सनल लेवल पे मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू लिखिता जॉन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड यस, आप, आपकी जो मैरिड लाइफ में इमोशनल कंप्लीशन और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है। ओके 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 ओके, वही तो मैं कह रही हूँ ज़ेबा, आपका ये कार्ड ही न्यू बिगनिंग का है, तो आ तो रहा है बहुत कुछ, ठीक है। अगर कोई साइकिल चल रहा है ना कंफ्यूजन का, अगर अगर चल रहा है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में, फिलहाल मैं थोड़ा मैरिड लाइफ की तरफ भी आ गई हूँ, तो उस बारे में बात कर लेती हूँ। इंट्यूटिवली रीड हो गई है मैरिट की एनर्जी, सो यस, कंफ्यूजन चल रहा है या डिस्टेंस चल रहा है या कम्युनिकेशन अगर गैप है ना, तो कोई क्लोजर और हीलिंग का टाइम भी आ रहा है, एंड आप दोनों के बीच एक डीपर बॉन्डिंग बनने का टाइम भी आ रहा है। और अगर मैं आपका देखूं, सिर्फ पर्सनल लेवल पर देखूं, तो लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना या कोई पर्सनल गोल अचीव करना। अगर आपने कोई तो गोल बना रखा है, कुछ तो अगर आपने सोचा है, तो वो अचीव भी आप कर रहे हो, एंड ट्रैवल हो रहा है या रीलोकेशन का भी चांस हो सकता है। आप स्पिरिचुअली भी बहुत अपलिफ्ट फील कर रहे हो इस समय पे, एंड जैसे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो इस समय पे, बड़ा आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार कुछ तो ऐसा एनर्जी पुल हो रहा है। आपके जो गॉड हैं वो, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उनसे फील कर पा रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हो। कुछ तो एनर्जी आप ऐसा फील कर रहे हो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और या तो बढ़ने वाला है पर्सनल गोल अचीव करने के लिए। एंड आपके लिए ज़ेबा, कहीं ना कहीं गाइडेंस यही आ रही है कि पास से लर्निंग लेकर, जो भी पास में हुआ है उससे लर्निंग लेकर कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली फ्यूचर की तरफ बढ़ो। अपनी आइडेंटिटी और ड्रीम्स को मैरिड लाइफ में बैलेंस करना सीखो, मतलब क्योंकि मैरिड लाइफ है, लेकिन आप अपने ड्रीम्स और आइडेंटिटी को मत खो, ठीक है, उसको, मतलब ऐसा ना हो कि मैरिड लाइफ ही सब कुछ और आप अपने आइडेंटिटी और ड्रीम्स को छोड़ दिया, नहीं, आप अपने ड्रीम्स और आइडेंटिटी के साथ साथ अपना लाइफ बैलेंस करना सीखो। मतलब आइडेंट यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, आपको रिवॉर्ड वो देंगे, जरूर देंगे, बस आपको ट्रस्ट रखना है कि जिससे आप अपने जो पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो सोच रहे हो वो आप अचीव कर सको, ओके। एंड जो फेज कंप्लीट हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो, मतलब जो भी फेज आपकी लाइफ में हुआ है, अच्छा बुरा जो भी, लेकिन उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो कि शुक्रिया शुक्रिया, जो भी मेरी लाइफ में है जो नहीं है उसके लिए, जो मेरे मेरे लिए है वो बहुत अच्छा है, और जो मेरे लिए नहीं होना था वो भी अच्छे के लिए ही हुआ होगा, ओके। और नए चैप्टर को बहुत ही वार्म हक के साथ वेलकम करो। आप अपने अपने लाइफ के एक गोल्डन टर्न पे हो इस समय पे, कहीं ना कहीं, मतलब कुछ तो ऐसा मेजर हो रहा है जो कि शायद अभी आपको दिख रहा है, या अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आने वाले समय में दिखने वाला है। अब ये क्या है क्या नहीं है, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा
पेड रीडिंग लेते हो, क्योंकि पेड रीडिंग मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि अरे मैं बताना नहीं चाहती, बिकॉज एक कार्ड में इतना ही मैं बता पाती हूँ। ये सच बात है, एक कार्ड में मैं इतना ही बता पाती हूँ, और अगर आपको क्या जानना है कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे 3-4 कार्ड उठाने पड़ जाते हैं, जिसके लिए आपको पेड रीडिंग तो लेनी ही पड़ेगी, सो दैट आपको क्लैरिटी आ सके, या आप ही मुझे बता सको आप क्या-क्या सोच रहे हो। अगर ऐसा कुछ है, आप गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, कुछ है जिसमें आप कर रहे हो काम, वो कितना सही है, कैसा है, डोंट वरी ज़ेबा, आप कमेंट कर दो कि आपको पेड सेशन चाहिए। मैं आपको जीमेल के थ्रू भी रीडिंग्स हो जाती हैं। अब मैं आपको जीमेल अकाउंट दे दूँगी, आप रीडिंग कर लेना, ठीक है? रीडिंग ले लेना मुझसे। जीमेल अकाउंट के थ्रू भी होती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपका मन होना चाहिए। आप पेड सेशंस वाक़ई में मुझसे लेना चाह रहे हो, तो आप कैसे भी ले सकते हो। वो तो इंस्टाग्राम एक मीडियम है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। मैं अभी व्हाट्सएप आईडी या व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकती हूँ किसी को भी। सो आप मुझे बस कमेंट कर दो यूट्यूब पे कि पेड रीडिंग, तो मैं आपको कैसे भी करके अपना आईडी दूँगी, जिससे आप करवा सकते हो रीडिंग। एंड नाउ, थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो सो मच। एंड नाउ लिखिता जॉन, लिखिता जॉन, अरे नहीं, आप अपना क्वेश्चन रखो लिखिता जॉन, आपकी चांस आ गई है। लिखिता जॉन, थैंक यू सो मच। जॉन पॉल करंट फीलिंग फॉर मी। ओके, आदित्य दीक्षित तो अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना क्वेश्चन का जवाब चाहिए। मैं तो देख रही शिव शिव वैष्णव किधर है? शिव वैष्णव प्रेजेंट है यहाँ पे? ओके, व्हाट जॉन पॉल इज थिंकिंग आफ्टर मी रिजेक्टेड। ओके, आदित्य दीक्षित ऐसे क्यों बोल रहे हो? लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझसे पेड क्वेश्चन लोगे, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन। मैं जिंदा हूँ, जिंदा तो जरूरी है रहना शिव वैष्णव। एंड नाउ लिखिता जॉन rejected his proposal. Now John Paul's current feeling for me. लिखिता जॉन ने रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल जॉन पॉल का। नाउ करंट फीलिंग ऑफ जॉन पॉल, प्लीज 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 यूनिवर्स, लिखिता जॉन का। थैंक यू सुधीर अग्निहोत्री। लिखिता जॉन का रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। नाउ जॉन पॉल करंट फीलिंग। Likita John rejected his proposal. ओके, सो लिखिता जॉन, जैसे कि एस ऑफ कप्स आ गया है आपके लिए, देखते हैं क्या आ रहा है इसमें।
एक मिनट लिखिका जान। ओके ओके नाउ निकिता जॉन लिसन। ठीक है, ये सब कब से आ रहा है आपकी रीडिंग में? सो जॉन पॉल के दिल में ना अभी भी स्ट्रांग इमोशन है फॉर श्योर। ठीक है, इतनी जल्दी कोई भी, वैसे सच बात तो यही है कि कोई इतनी जल्दी ओवरकम नहीं करता इन सब चीज़ों से, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि अभी भी स्ट्रांग इमोशंस हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स यही दिखा रहा है इस समय पे। दिल से कनेक्शन अभी भी अलाइव है, चाहे रिजेक्शन हो चुका हो, लेकिन वो आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स तो ज़रूर रखते हैं। नई इमोशनल बिगनिंग की डिज़ायर हो सकती है, लेकिन शायद वो सोचते हों कि एक बार फिर से ट्राई करके या नई स्टार्ट हो, तो आप मतलब नई स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, एक फिर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि एक बार और ट्राई, एक बार और ट्राई, ऐसा। रिजेक्शन के बाद भी वो हर्ट तो हुए हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स प्योर हैं, मतलब वो आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हुए भी आपके लिए प्यार या अटैचमेंट फील कर रहे हैं। एज ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है emotional overflow. So he might be going through an emotional phase, या आपकी यादों में रह जाना या रहना एक तरीके से। एंड ऑल्सो सो क्योंकि एक होपफुल कार्ड है लिखिता, तो फिर यस, अभी भी होपफुल कार्ड है। अगर आप दोनों इमोशनली रेडी हो, नए रिश्ते की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है उनकी साइड से, तो फॉर श्योर बनी हुई है, वो एक ट्राई और करने का सोचेंगे आपके लिए। एंड मैसेज फॉर यू लिखिता, उनके दिल में अभी भी जगह है आपके लिए, अगर आप रेडी हो तो इमोशनली फीलिंग हीलिंग और फ्रेश कनेक्शन पॉसिबल है। एंड यस लिखिता, इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं, बट उनकी साइड से अगर आपने पूछा है, उनकी जॉन पॉल की करंट फीलिंग पूछी है, उनकी तरफ से वो एक ट्राई और करेंगे आपके लिए। ओके ओके लिखिता। बेक 215, प्लीज मेक श्योर टू मेंशन कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है। हैव यू फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट? एंड यस, डिड यू शेयर दिस लाइव सेशन? और ऑल्सो did you commented on any my one of my video short videos, or on this live session? If you did, if you have already, please make sure to contact Sonia, my moderator. She will take your name. Okay. आदित्य दीक्षित, दीदी कमेंट डन। क्या मेरी लाइफ नॉर्मल होगी जैसे और लोग इंजॉय करते करते हैं? लाइफ न्यू बिगिन, डेट ऑफ 21 फरवरी 2005। हाय फैजानुल हक, हाय, how are you? Sonia, Faizanul Haq is helping me so much regarding AI tools and all, and he is such a sweet person. Sonia, Faizanul Haq से भी आपको दोस्ती करनी चाहिए, because she is a good man, like good person. सोनिया, मेरे को सबसे दोस्ती करानी होती है आपकी। मतलब सोनिया, मैं चाहती हूँ कि जिसे मैं जानती हूँ उसे आप भी जानो, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी सोनिया। एंड ऑल्सो सुधीर अग्निहोत्री भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं इम्पॉर्टेंट सुधीर अग्निहोत्री भी है, बट फिलहाल हाय फैजानुल हक, कैसे हो आप? एंड यस, नाउ मूविंग टू आदित्य दीक्षित। आदित्य दीक्षित, ठीक है। आदित्य दीक्षित का क्वेश्चन है, आदित्य दीक्षित आप मेरे लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, बिकॉज मेरा हस्बैंड आने वाला है और मैंने खाना भी नहीं बनाया है, ठीक है? खाना भी नहीं बनाया, मतलब मैं एक बार किचन में जाके देख के आती हूँ।
आई नो आदित्य दीक्षित, मुझे बस 2 मिनट दो। हाय एवरीवन। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, उठ गई है। मेरा सारा एक ही साथ होता है, उठना भी और सब कुछ। तो इतना ज़्यादा कर रहे हो तो वो उठ ही जाएगी। थैंक यू फैज़ान उल हक। एंड यस आदित्य दीक्षित। सोनिया, अभी जिसका होना है उसका हो चुका है और जिसका नहीं हुआ है आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज आदित्य दीक्षित इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद मैं रीडिंग उसके बाद मैं रीडिंग आप लोगों को रात को ही दे पाऊँगी, अभी तो नहीं दे पाऊँगी। ओके आदित्य दीक्षित, मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रख रही हूँ। आदित्य दीक्षित का क्वेश्चन है, क्या मेरी लाइफ नॉर्मल होगी जैसे और लोग एंजॉय करते हैं वैसे? कैन यू बिगिन डेट ऑफ बर्थ? ओके इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो, कसम आई एम वेरी सॉरी, चाहे कितना भी अर्जेंट हो, आई रियली कांट। मैं थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है कसम, आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट कि मैं लेना नहीं चाहती, इट्स ऑल अबाउट कि मैं ले नहीं सकती। ओके, यू हैव टू वैल्यू माई टाइम एंड यू हैव टू वैल्यू माई स्पेस ऑल्सो। मेरा स्पेस इतना ही है कि मैं आप लोगों के लिए इसलिए अवेलेबल हूँ बिकॉज़ मैं अपने और चीज़ें छोड़ के अपनी इवन मैं काफ़ी टाइम अपने पेड सेशन छोड़ के लाइव आती हूँ सो दैट काफ़ी लोग कवर हो सकें। और जो कि लाइव अगर आपको इतना अर्जेंट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। पेड पेड सेशंस में थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहती हूँ। ओके आदित्य 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 क्या होगी मेरे नॉर्मल लोग एंजॉय करते हैं। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बेबी प्लीज़ बस मुझे ये करने दो।
ये लो, ये लो। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, ओपन इट। गुड, 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 गुड। एंड नाउ सब लोग कितनी जल्दी चले गए, 8 ही लोग हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके ओके आदित्य, मैंने आपके लिए 2 बार कर दिया क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही थी अपनी बेटी से, और इसीलिए मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज उसकी एनर्जी जरा भी मेरे टैरो पे नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज ये मेरा सीक्रेट स्पेस है और आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी से फाइनली जब मैंने कार्ड उठाया है तो आपके लिए आया है 9 ऑफ पेनिकल्स का। एंड यस, आपकी लाइफ जो है ना आगे नॉर्मली है, इवन काफ़ी फुलफिलिंग हो सकती है। आप अपने दम पर खुश रहना सीख जाओगे। जो लोग लाइफ एंजॉय करते हैं उनकी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी सुकून और कंफर्टेबल फील करोगे। जिन भी लोगों को जो भी लोग आपके जो आप देख रहे हो ना, जिन लोगों को इनफैक्ट उनसे ज़्यादा अच्छा, जैसे कि इमोशनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों ग्रेजुअली आएंगे। और कहीं ना कहीं सुकून का मतलब होता है इमोशनल सुकून, फाइनेंशियल सुकून। मनी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक तरीके का सुकून देता है हमको। लाइफ एंजॉय इसी तरीके से होती है। एंड यस, ऐसे ऐसे लोगों जैसी लाइफ जिनकी जो आप बात कर रहे हो ना, वो वो आप भी जी सकते हो। ठीक है, हो सकता है अभी लाइफ थोड़ी स्टक या लो लग रही हो, पर फ्यूचर में आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट भी आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे एंड पीसफुल और ग्रेसफुल लाइफ मिलेगी। एंड ज़िंदगी तब नॉर्मल लगती है आदित्य दीक्षित, जब हम अपने आप से कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, और आप उस स्टेज के बहुत करीब हो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट, इनर रिचनेस और लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट का सिग्नल है और आ रहा है आपके लिए आदित्य दीक्षित। सो आप ज़रूर जाओगे, आप हैप्पी हो। इनफैक्ट बस हो आप हैप्पी। ठीक है शिव वैष्णव, आज भी आपकी रीडिंग नहीं हो पाई। आप ऐसे ही हंसती रहोगे तो कैसे रीडिंग